Hello everyone, my name is Ravi Shankar and recently I have been selected as a scientist in DRDO. So today I am here to discuss with you all my preparation strategy, my journey throughout this exam, and if any one of you who aspires to become a DRDO scientist may find this video helpful, and if it adds some value to your preparation, then I will feel fortunate enough for that. So starting from my journey, I am from Patna. So I have done my schooling to engineering throughout from Patna. I have done schooling from a local school here, CBSC. So I've got 10 CGPA there. Then after that I did 12th from state board, which is Bihar board. So I scored 81% there. Then in the same year I qualified JEE mains. So through that I got admission into NIT Patna. I did mechanical engineering there. I became training and placement coordinator of my batch as well. Then in the final year, I got placed in a French multinational company, Alstom Transport India Limited. I worked there on Canada Metro project as a maintenance engineer for around 3 years. Then after that, I qualified HPCL exam, which is a Maharatna Public Sector Unit. So there I've been assigned officer engineering post. So there I worked as a sales officer in lubricants department for around 1 year. And then I qualified this exam and now I am a DRDO scientist. So this is my whole professional journey throughout. So starting from this particular exam, so this exam has 3 stages. First is the gate, second is the written exam, DRDO conducts its own written exam, and then the interview. I think from this year onwards the pattern has been changed a bit, like they have removed the written exam that is there in the between. So now from directly gate you will get called for your interview, but you never know, the pattern may change again. So I'll talk about all the 3 stages. So starting from gate, so for gate, this time the gate is now more important because now they are directly taking it from gate to interview. So gate के लिए मैंने क्या किया था कि first I divided my preparation into 3 phases for gate. So first what I did was कि मैंने notes सारे subjects के बनाने शुरू किए थे पहले. तो उसमें क्या हुआ कि मैंने गेट का सिलेबस लिया और उस गेट के सिलेबस में जब आप देखोगे, जैसे सोम है तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, तो उसके जो जो टॉपिक्स गेट के सिलेबस में दिए हुए थे, मैंने हर एक सब्जेक्ट्स को उन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया. तो मैंने हर एक टॉपिक को लेके फिर उसके नोट्स बनाए रेफरेंस बुक से लेके. मैं रेफरेंस बुक आपको बता देता हूँ. जैसे मैंने सोम के लिए BC पुनिया रिफ़र की थी. अच्छी किताब है, उसमें आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों दिए हुए थे. तो मैंने वहाँ से रेफरेंस लेके अपने नोट्स बनाने शुरू किए. और मैं क्या करता था कि लाइक हर एक टॉपिक के बाद मैंने स्पेस 1 या 2 पेज छोड़ रखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो उसमें से फिर से नए कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे फ्रॉम द सेम टॉपिक. तो मैं फिर उनको ऐड करूँगा ताकि वो टॉपिक के सारे कंसेप्ट एक जगह रहें. इससे आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी. तो मैंने क्या किया था कि सारे सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज में डिवाइड करके और रेफरेंस बुक से लिया था. तो सोम के लिए मैंने BC पुनिया रिफर की थी. थ्योरी ऑफ मशीन्स के लिए मैंने SS रतन रिफ़र किया था. उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे थे तो मैंने वहाँ से न्यूमेरिकल्स भी किए थे. उसमें जो शुरू का पार्ट था, जो एक्सेलरेशन एनालिसिस और वेलोसिटी एनालिसिस, वो मुझे उस बुक से समझ नहीं आए थे. तो मैंने किसी यूट्यूब चैनल से देख के फिर उसको वहाँ से किया था. तो आप भी अगर आपको समझ आ जाए SS रतन से तो ठीक है, वरना आप किसी दूसरे रिसोर्सेज से रिफ़र करके कर सकते हैं. बाकी सारे टॉपिक्स उसमें अच्छे से दिए हुए हैं. फिर हाँ, मशीन डिज़ाइन के लिए मैंने VV भंडारी रिफ़र करी थी. वो मैं कॉलेज टाइम में मैंने पढ़ रखी थी. तो फिर मैंने उसी को कंटिन्यू करा अपने गेट के नोट्स बनाने में. तो उसमें आपको जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वेल्डेड एंड रिवेटेड जॉइंट्स. तो उसमें आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि जैसे लाइक डबल स्ट्रैप बट जॉइंट में डबल स्ट्रैप कैसे होगा, फोर्स में 2 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कब करेंगे. तो वो टॉपिक्स थोड़ा वीकली उसमें एक्सप्लेन्ड है, दैट यू हैव टू इमेजिन. एंड वंस यू गो थ्रू द क्वेश्चंस तो आपको वो पता चल जाएगा कि उसमें कैसे कैसे आपको मल्टीप्लाई या इंटू करना है. फिर हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स के लिए मैंने SK सोम के लेक्चर्स देखे थे NPTEL के. दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑन यूट्यूब. तो उस लेक्चर को देखने के बाद मुझे किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी.
तो आई हाईली रिकमेंड कि आप भी उस वीडियो को गो थ्रू करें। वो वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है, आपके क्वेश्चंस भी उससे बन जाएंगे, उस जो कॉन्सेप्ट उसको आपको मिलेंगे उसमें। तो एसके सोम के लेक्चर्स। फिर हीट ट्रांसफ़र के लिए मैंने एज सच कोई बुक रिफ़र इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरे जो कॉलेज के नोट्स थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे। कॉलेज में हमारे सर ने उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, तो मैंने उसी को अपने नोट्स में उसे रिफ़ाइन करके मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। बट इफ़ आई हैव टू रिकमेंड वन बुक तो आप आरसी सचदेवा की बुक ले सकते हैं। माई फ्रेंड्स हैव स्टडीड दैट बुक एंड गिवन मी द फीडबैक दैट इट इज़ गुड, सो यू कैन रिफ़र आरसी सचदेवा। देन फॉर आईसी इंजन्स आप वी गणेशन पढ़ें। वी गणेशन को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं आपके गेट के आप वो पढ़ सकते हैं उसमें से। देन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए मैंने सीपी अरोरा पढ़ी थी। सीपी अरोरा में मुझे साइकोमेट्री समझ में नहीं आई थी, तो मैंने उसके लिए फिर साइकोमेट्री के लिए मैंने कुलकर्णी सर अनअकैडमी के एक सर हैं, उनका मैंने लेक्चर्स देख के मैंने फिर वहाँ से वो किया था। तो आप भी देख लें, अगर आपको साइकोमेट्री उसमें समझ आ जाती है तो ठीक है, वरना आप किसी और सर के लेक्चर्स या कुलकर्णी सर के ही लेक्चर्स आप देख सकते हैं। फिर पावर प्लांट के लिए मैंने पीके नाग पढ़ी थी। और फिर प्रोडक्शन के लिए मैंने राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग मटेरियल्स टू कैड कैम, तो मैंने उसके लिए कल्पक जैन ही पढ़ा था। और वो एक इतनी मोटी किताब आती है, आप मतलब मैंने उस कल्पक जैन को पता नहीं कितनी बार पढ़ा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं पढ़ पाया। तो वो एक है कि उसमें तुम्हें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे प्रोडक्शन के। हाँ, उसमें न्यूमेरिकल्स कुछ कम हैं, उसके लिए तुम घोष एंड मलिक पढ़ सकते हो, उसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे दिए गए हैं। तो आप थ्योरी कल्पक जैन से पढ़ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए आप घोष एंड मलिक को रिफ़र कर सकते हैं, तो आपका पूरा प्रोडक्शन उसी एक बुक से हो जाएगा। देन फॉर इंडस्ट्रियल कोचिंग नोट्स आर इनफ। आई थिंक यू विल नॉट फाइंड एनी बुक वेयर यू कैन फाइंड ऑल द टॉपिक्स। तो आई फील कि उसके लिए कोचिंग के नोट्स ही सेल्फ सफिशिएंट हैं इंडस्ट्रियल के लिए। और इंडस्ट्रियल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चंस ज़्यादा बनाएं, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो अपने आप आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे इंडस्ट्रियल में। तो ये मेरी बुक लिस्ट थी, इनको यूज़ करके मैंने नोट्स बनाना शुरू किया था। तो जब मेरे नोट्स बन गए थे देन आई स्टार्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट, क्योंकि उससे आपको हर एक सब्जेक्ट में एक पता चल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इट विल चैनलाइज योर प्रिपरेशन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज मस्ट। आप कम से कम 1 या 2 बार तो उसे ज़रूर सॉल्व करें, और उससे अलाइड क्वेश्चंस भी, लाइक इफ़ आपने प्रीवियस ईयर के किसी एक टॉपिक से क्वेश्चंस बनाए तो आप उनके दूसरे कोचिंग के नोट्स, जैसे मेडीजी का वर्कबुक, मैंने एस के बिट्स और बाइट्स भी देखे थे, तो वहाँ से भी आप उसके अलाइड क्वेश्चंस बनाते रहें। और लेकिन अपने कंसेप्ट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स के साथ फिक्स रखें, तो शायद आप अच्छा मतलब आपको एक रास्ता, एक डायरेक्शन मिल जाएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ। तो मैंने तो प्रीवियस ईयर को ही बेस बना के मैंने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। और फिर देन टेस्ट सीरीज आ जाते हैं। आप टेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गेट में क्या होता है कि देर आर मेनी पीपल हु नोज दी कंसेप्ट्स, हु नोज दी सॉल्यूशंस, हु दे हैव इक्वल नॉलेज, बट द पॉइंट इज़ कि दे समटाइम्स लैक एक्यूरेसी और सिली मिस्टेक्स होते हैं गेट में। तो उनको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें। मैंने एक सर्जिक का टेस्ट सीरीज़ लिया था, तो उसमें मैंने उसके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ तीनों दिए थे। तो आप भी किसी एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ से स्टिक रहें और उसे अपने प्रिपरेशन के हिसाब से देते जाएं। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ दोगे तो साथ साथ में आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने आज सोम का टेस्ट दिया तो आप उसको रिवाइज करके दोगे, तो टेस्ट सीरीज से आपकी 2 चीज़ें हो जाएंगी कि आपका एक तो रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरी चीज़ कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख जाओगे कि 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस हैं, तो मैं कैसे कैसे अटेम्प्ट करूं, पहला कौन सा सेक्शन करूं। तो दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया, लाइक इट विल गिव यू अ वन टाइम रियल इन्वायरमेंट ऑफ एग्जाम, तो उससे आपको रियल एग्जाम में आसानी होगी। तो आई विल से कि टेस्ट सीरीज इज़ मस्ट। सो गेट के लिए 3 चीज़ें ही करो, नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर देखो और टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। और टेस्ट सीरीज के एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि आप एक गलती बार बार करते हो, तो व्हेन यू एनालाइज टेस्ट सीरीज तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में, किस सेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है और आप उस पर फोकस कर सकते हो।
So this is all about GATE preparation. Now talking about the main DRDO exam. So once you are shortlisted from GATE, you will be called for the DRDO written exam. So you will have the syllabus of ESE mains, whatever the syllabus of engineering services mains is there, the same is the syllabus of DRDO written exam. तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है, बट द पैटर्न इज डिफरेंट. लाइक यू विल बी आस्क्ड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पेपर एंड ईच क्वेश्चंस विल हैव 5 मार्क्स. तो टोटल 400 का एग्ज़ाम होता है और आपके सेम डे में पेपर 1 और पेपर 2 होता है. तो पेपर 1 में आपका वही सारे सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग गेट के हिसाब से ही रहते हैं. कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोम में आप थिन सिलेंडर ही पढ़ते हो गेट में, बट इसमें आपका थिक सिलेंडर भी ऐड हो जाता है. तो लाइक दैट इन एवरी सब्जेक्ट यू विल हैव सम एक्स्ट्रा सिलेबस. और एक रिन्यूएबल एनर्जी और मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स ये भी एक्स्ट्रा ऐड होता है उसमें. तो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप उन सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ सकते हो, वरना जो आपके गेट के सिलेबस में आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं अगर आप वो भी अच्छे से करके जाओगे तो यू विल हैव अ फेयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. तो मैंने तो एज सच रिन्यूएबल एनर्जी और मैकेट्रॉनिक्स पढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरे कॉलेज के इलेक्टिव्स में मैंने ये सब्जेक्ट्स लिए नहीं थे. इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दीज सब्जेक्ट्स आर इलेक्टिव्स, सो यू मे और मे हैव नॉट ऑप्टेड फॉर दिस. तो इसमें क्या करना है कि जो भी आपने पढ़ा है बस उस पर भी अगर आप फोकस करोगे, और जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल इन गेट आप एजम्पशंस देखते नहीं हो, डेरिवेशंस पे हमारा ध्यान नहीं रहता, वी जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस. इवन वी लर्न सो मेनी शॉर्ट ट्रिक्स फॉर गेट सो दैट आवर टाइम गेट मिनिमाइज्ड एंड विल गेट द आंसर. बट ये चीज़ें इस एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करती. इन एग्ज़ाम्स में यू हैव टू राइट, इट इज़ नॉट एन ऑनलाइन एग्जाम. तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि गिवन दीज आर ऑल द डेटा, देन दीज आर ऑल द एजम्पशंस आई एम टेकिंग एंड दीज आर ऑल द स्टेप्स. सो यू हैव टू study the same subjects but with a different approach. Like you have to understand their assumptions, understand the derivation of formulas as well, and understand जैसे आप कुछ diagrams भी आप अगर अपने आप बना सको तो that will make your answer more better. In most of the questions I made diagrams, तो I think that gives an edge to your preparation कि आप diagram से you can easily कि आप questions भी बना रहे हो और उसको diagram से show भी कर रहे हो. तो एक तो आपको उसके लिए कोई DRDO एग्जाम के लिए एज सच मुझे नहीं लगता कुछ आपको स्पेशल करना है. इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड गेट वेल देन इन द सेम टॉपिक्स यू ऐड ऑन योर मोर लाइक एजम्पशंस वाला पार्ट और वो सब. देन इफ़ यू राइट प्रॉपरली देन ऑफ कोर्स यू विल गेट योर एग्जाम्स. एंड you know 40 questions are there, so you will hardly attempt all the questions. So just attempt the questions in which you are very confident and write the assumptions, the diagrams, the structure, the steps of the questions clearly. Then of course you'll get the examiner, even if you are not getting the final answer correct, you'll get the marks in your steps. तो आप DRDO एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं. एज सच आप ESE के प्रीवियस ईयर को एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं. उसमें जो भी क्वेश्चंस एजम्पशंस और डेरिवेशंस से पूछे गए हैं आप उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. देन आई थिंक द प्रिपरेशन, इफ़ यू हैव डन गेट इनफ, देन फॉर दिस एग्जाम यू हैव टू जस्ट ओनली ऐड अ डेल्टा प्रिपरेशन टू योर एग्जिस्टिंग नोट्स, तो आप उससे कर लोगे. देन कमिंग अबाउट द फाइनल स्टेप, द इंटरव्यू पार्ट. तो इंटरव्यू इसमें the weightage is like 80% will be weightage to your written exam. I think now the written exam is not there, then 80% will be weightage to your gate score and 20% will be your interview. Though the weightage of interview is less, but it's an elimination round. So there is a minimum cutoff of interview, like for general it is 70, subsequently for other categories also there is a minimum cutoff. So you have to qualify that cutoff, otherwise you will not be considered for the final merit list. Even if you have topped in the written exam, but if you don't qualify the interview, you are out of the process. तो इंटरव्यू के लिए जैसे DRDO का इंटरव्यू जो होता है वो प्योरली टेक्निकल इंटरव्यू होता है. देर इज़ नो HR एलिमेंट इन दैट. लाइक पहले हो सकता है कभी कभी जब आप एंटर करो तो जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल दे विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस कि आप कहाँ से हो या आप कैसे आपने क्या किया है, बट दोज आंसर्स मीन्स नथिंग टू योर मार्क्स. सो there is no HR element in DRDO interview, so it is purely a technical interview. Whatever technical answers that you will give, you will be getting marks on that. So first is ki there is no HR question, so you no need to prepare for HR things here. The second thing about the technical is ki you have to prepare your subjects well. There is no favorite subject that they will ask. Everything about mechanical engineering they can ask from anywhere.
So you have to prepare for that. Basic questions of every subject, you have to be thorough with that. सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे आपने कोई बीटेक के अलावा कोई और चीज़ें की हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव डन एमटेक, देन दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दोज एमटेक स्पेशलाइजेशंस. लाइक इफ़ यू हैव डन जॉब, then for example I was doing job at HPCL in the lubricants department, so they asked me about lubricants की लाइक विस्कोसिटी क्या होती है लुब्रिकेंट्स की, व्हाट इज़ द विस्कोसिटी इंडेक्स, या जो ग्रेड्स ऑफ ऑयल होते हैं 20W40, इसमें इस W का क्या मीनिंग है. सो दे डिग यू अपॉन दैट कि वट एवर यू आर करेंटली डूइंग, दे विल ट्राई टू नो कि तुम एक्चुअली वॉट यू आर डूइंग, लाइक योर एमटेक स्पेशलाइजेशन इफ़ यू हैव डन, देन उससे पूछेंगे. लाइक एंड इफ़ यू हैव नॉट डन एमटेक एंड एनी जॉब, देन दे विल आस्क यू बीटेक प्रोजेक्ट्स, आपने कोई इंपॉर्टेंट बीटेक प्रोजेक्ट्स किए हैं. एंड before you go to the interview, they'll have your biodata ready with them. So like उनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके बीटेक में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, आपने कहाँ से इंटर्नशिप्स किए हैं, आपके बीटेक प्रोजेक्ट्स, एवरी डिटेल्स दे ऑलरेडी हैव, बिकॉज यू हैव अपलोडेड दिस डिटेल्स व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म. सो दोज डैफ्स दे ऑलरेडी हैव. सो यू हैव टू prepare everything that you have, all the information that you have submitted to them, you can expect questions from them. लाइक जैसे मेरे जॉब से क्वेश्चंस पूछे थे और मेरे बीटेक प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे थे. फॉर एग्जांपल माय बीटेक प्रोजेक्ट वाज ऑन फूड स्टेप पावर जनरेशन. तो उन्होंने वहाँ से वो तो पूछा ही कैसे किया तुमने, एंड व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोजेक्ट, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट. सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, तुमने क्या किया उस प्रोजेक्ट में. और लाइक उसके अलाइड क्वेश्चंस, लाइक जैसे फूड स्टेप पावर जनरेशन मैंने बताया, तो उन्होंने वहाँ से क्वेश्चन पूछे कि देन यू टेल मी व्हाट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस. Actually it's a device through which if pressure is converted into electricity, वो footsteps में use होते हैं. So you can expect the allied questions, वो तुम्हारे आंसर से ही questions बनाते हैं. So there is no hard and fast rule कि तुमसे क्या पूछेंगे. But yes, if you want to prepare, then prepare the things about the information that you have submitted during your form filling. जैसे there are many subjects that we study in our final year, like financial management, professional ethics. तो दे विल सी कि अच्छा तुम्हारे प्रोफेशनल एथिक्स में तो A+ आए थे, अच्छा बताओ ये इस वाले क्वेश्चंस में ये प्रोफेशनल एथिज्म बॉटलनेक्स क्या होते हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट डोमेन. तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि प्रिपेयर योर टेक्निकल वेल, बट फोकस मोर ऑन व्हाट करेंटली यू आर डूइंग. फ्रॉम देयर दे विल आस्क यू मोर क्वेश्चंस. If you are doing job, then focus on your job. If you are doing MTech, then focus on your MTech. If you have not done anything, then focus on your BTech projects. And if you have done internships at some distinguished places, like if you have done internship in DRDO itself, then you can expect questions from that. So you have to prepare interview like that. And interview, there is no right or wrong answer in that. Sometimes the interview turns into discussions as well. So even if you don't know the answer of a particular question, but you don't have to directly say कि सर नहीं आता मुझे. You have to learn the art of saying no. So sometimes when you say no to a question also, you get marks. So like for example in the grinding wheel specification they asked me. So I remembered the specification through a trick, but I can't say the tricks there. So I have told them कि sir I am not able to recall now. I will definitely go and read about it. So you have to frame your answers in such a way that you should be seen as that you are keen to know the things. So you have to show your attitude like that. You have to make the tone of your answers like that. Sometimes it happens that your body talks so loudly that you can't hear someone. So your attitude in the interview is such, even if you know the answer or don't know the answer, your attitude should be that you want to know, that you want to explore the research area and like तुम्हें ये होना चाहिए कि तुम रिसर्च करना चाहते हो, तुम्हें चीज़ों को जानने की इच्छा है. तो वो एटीट्यूड अगर तुम वहाँ दिखाओगे तो डेफिनेटली इवन इफ यू डोंट नो द आंसर यू विल गेट मार्क्स. तो दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. तो फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रिपेयर वेल, फोकस ऑन योर शॉर्ट टर्म गोल्स. छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उनको डेली अचीव करने की कोशिश करो. अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करो. ज़्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचो. फोकस मोर ऑन द प्रोसेस. डेफिनेटली यू विल अचीव योर सक्सेस. प्रिपेयर वेल, बी कॉन्फिडेंट, बी अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, जस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड
and all the best. You will achieve your success. And thanks DKT for shooting this video. Definitely it's gonna help the aspirants. Thank you.